Hello friends, welcome to my channel Anshu Solutions. Today I will be posting the English lesson plans for B.Ed semester 3rd. In this subject we have to prepare 20 lesson plans and I will be forwarding the lesson plans in this video, one lesson plan at a time, and I will be telling you all how to make the lesson plan and what are the steps we need to follow. So when we start the lesson plan, as you all can see, first we write the lesson plan number, then we write the name of the pupil teacher, which is the name of the student who is preparing the lesson plan. Then comes the name of school, then subject, then topic जिस पे हम plan बना रहे हैं, then comes the date. On the right hand side comes the class, which class lesson we are taking, the period and duration. Duration of a lesson plan is usually of 40 minutes. Then we come to the subheadings. The first heading that we come to is the general aims. Now the general aims range from 3 to 5 general aims. Like here in this lesson plan I have taken the topic of class 7th, and the topic is of English literature reader. The lesson is gift of chappals, as you can see. Here in general aims, the first aim is to enhance the reading skills of the students. Now while teaching a prose lesson, we usually make the students read the lesson, और रीडिंग से उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस होती है. सो दिस इज़ one of the general aims. The second aim is to gain command and fluency over speaking English language. While interacting with the teacher as well as while reading the lesson, the students gain fluency in English. The third aim is to enable the students to read the lesson with proper punctuation. When they read, उनका punctuation भी improve होता है. Fourth is to improve their vocabulary. Fifth is to enable them to understand the content of the lesson. इस तरह से आप अपने हिसाब से जनरल एम्स और भी कुछ लिख सकते हैं. मैंने ये जनरल एम्स लिखे. द सेकेंड टॉपिक इज़ स्पेसिफिक एम. अब स्पेसिफिक एम हमेशा एक ही होता है एक लेसन प्लान का. तो यहाँ पर स्पेसिफिक एम है टू मेक देम अंडरस्टैंड द स्टोरी and lesson and learn some moral values from it. So English में whenever we teach a lesson, there is always a message given in the lesson or some moral values which the students grasp. So this is the specific aim. The third subheading is teaching aid, जो हम use करते हैं while teaching the lesson. Here I have written prepared a chart showing the pictures of the events happening in the lesson. तो lesson में जो भी characters होते हैं या जो भी events होते हैं उनको हम एक chart के through भी show कर सकते हैं while teaching. Next subheading is previous knowledge. Now the previous knowledge is the knowledge which the students already have before studying the chapter. तो यहाँ पे I have written students have some basic knowledge related to the lesson. Okay. The next is skills to be developed. तो इस चैप्टर को टीच करने से कौन से स्किल्स डेवलप होंगे स्टूडेंट्स में, दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग स्किल्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन द टीचर नीड्स टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस सो दैट द स्टूडेंट्स अराइव एट अ टॉपिक of the lesson. So here the questions I am asking to reach the topic, that is gift of chappals, is what games do we play in the evening. ये जो answers लिखे हैं this is students answer. So students might answer we play football, basketball, bat ball. The second question is what do you wear in foot while playing. We wear shoes or sandals while playing. What do you wear when you are at home. We wear slippers or chappals. So now we have arrived at a topic of chappals. The next heading is the statement of aim. Then we write. इसमें what will we write? Today we will study a new lesson, a gift of chappals. Okay. So now the teacher is showing the aim, which is
learning the lesson A Gift of Chappals. Next comes the presentation part. This is a very interesting story about three cousins and their innocence. As the lesson is lengthy, it will be completed in two parts, unit 1 and unit 2. So presentation mein we have to specify this also, whether we are completing the lesson in one unit or in two units. Next is the teaching method. Here we are using narration method and explanation method. Next we start the unit with unit 1. अब इसमें चार हेडिंग सब हेडिंग्स होती हैं, चार कॉलम्स होते हैं. वन इज टीचिंग ऑब्जेक्टिव, देन टीचर्स एक्टिविटी, then student activity, then blackboard work. Now while teaching prose, पहले मॉडल रीडिंग 1 होती है जो कि टीचर करती है टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स फॉर द लेसन. हियर द टीचर विल स्टार्ट रीडिंग द लेसन. स्टूडेंट कॉलम में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली. देन ब्लैकबोर्ड वर्क में द टीचर विल राइट द हेडिंग ऑफ द लेसन. नेक्स्ट कम्स द मॉडल रीडिंग 2. यहाँ पर टीचर विल अगेन रीड द पैराग्राफ with proper explanation and the students will listen carefully. We will continue from here. Again in the next page we need to write the column headings जो कि वही हैं teaching objectives, teachers activity, students activity, blackboard work. Next part comes the imitative reading. यहाँ पर students imitate करते हैं टीचर को जो उन्होंने read किया हुआ है. तो स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स विल रीड वन बाय वन एंड अदर्स विल फॉलो इन देयर बुक्स, जैसा कि क्लासरूम में होता है. नेक्स्ट पार्ट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल. यहाँ पर द टीचर विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग्स. तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कॉलम में हम एक मिनिएचर लगाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फ्लोरेसेंट पेपर लगाया हुआ है जिसमें कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है द टीचर इज़ गोइंग टू राइट दीज वर्ड्स ऑन द बोर्ड. देन कम्स द एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इसमें जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड में लिखे हैं इसके मीनिंग्स एक कॉलम में टीचर लिखेगी. देन इसका यूसेज आएगा. यूसेज मीन्स वी विल यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस एंड द टीचर विल राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. तो इस तरह से एक कॉलम हमें फिर से बनाना होता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, जिसमें चार हेडिंग्स होती हैं. वर्ड्स आते हैं कॉलम में, नेक्स्ट मीनिंग आता है उनका, देन यूसेज आता है, देन ब्लैकबोर्ड वर्क आता है. तो ये आप देख सकते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट इज़ द एक्सप्लेनेशन पार्ट. पहले हमने क्या लिखा था, मॉडल टीचिंग 1 जिसमें टीचर ने रीडिंग किया, मॉडल रीडिंग 2 जिसमें टीचर ने दोबारा रीड किया विथ एक्सप्लेनेशन. देन कम्स द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इमिटेटिव रीडिंग आती है, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आता है. देन कम्स द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर. यहाँ पर टीचर एक्सप्लेनेशन देती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट कंटेंट नॉलेज. यहाँ ब्लैकबोर्ड वर्क में हम कुछ मिनिएचर्स लगा सकते हैं रिलेटेड टू द लेसन. देन कम्स द साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग में आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन द टीचर गिव्स सम टाइम टू द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन साइलेंटली. ओके, देन फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद में कम्स द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं जो भी एक्सप्लेनेशन या रीडिंग पार्ट टीचर ने किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस टीचर पूछते हैं. देन स्टूडेंट्स आंसर एंड द सेम आंसर्स आर रिटन इन द ब्लैकबोर्ड वर्क. सो दीज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कैन बी between 3 to 5 questions. After this we come to the second unit. Now क्योंकि लेसन बड़ा है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड इन वन यूनिट, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स. फिर से सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट विल बी मॉडल रीडिंग 1, देन मॉडल रीडिंग 2, थर्ड पार्ट विल बी इमिटेटिव रीडिंग. देन कम्स द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल जिसमें कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगेन जो रेस्ट पार्ट रीड कर रही है टीचर उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, वो हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे एज अ टीचर. देन एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स विल बी देयर जिसमें कि अगेन 4 कॉलम्स बनेंगे. फर्स्ट में वर्ड्स होंगे, सेकंड कॉलम में उनका मीनिंग होगा, थर्ड कॉलम में यूसेज होगा कि कैसे वो वर्ड्स हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, और सेम मीनिंग्स हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे. देन कम्स द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द सेकेंड यूनिट. The subheadings or the column headings will be the same: teaching objectives, teachers activity, student activity and the blackboard work. यहाँ पर blackboard में वर्क में हम कुछ चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है पिंक पेपर पे लिखकर कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं या क्या चीज़ें हैं
जो ध्यान में रखने वाली हैं बच्चों के लिए, वो हम लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। देन कम्स द साइलेंट रीडिंग। और अब सेकेंड यूनिट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जाते हैं। सेम ऐसे ही 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे रिलेटेड टू द explanation part of the second unit. Then after the completion of 2 units comes the recapitulatory questions, जो कि again 3 to 5 होते हैं और ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछते हैं। इनके आंसर्स हम नहीं लिखते हैं लेसन प्लान में, you just need to write the questions. Then comes the classwork. Classwork is usually in objective type form, या तो fill in the blanks हो सकते हैं, या true false हो सकते हैं, या one words हो सकते हैं। बिकॉज क्लास वर्क नॉर्मली एक रोलर बोर्ड पे लिखकर या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर टीचर्स देते हैं क्लास में जब हम टीचिंग करते हैं, और वो जो क्लास वर्क के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्टूडेंट्स बोर्ड पर आकर फिल करते हैं 1 by 1। देन कम्स द होमवर्क, और लास्ट में हम एक सिग्नेचर के लिए ड्रॉ करते हैं एक कॉलम, जिसमें फर्स्ट होता है सिग्नेचर ऑफ प्यूपल टीचर, जो कि जो लेसन प्लान बना रहे हैं स्टूडेंट उनका होगा। सेकेंड इज सिग्नेचर ऑफ गाइड एंड थर्ड इज द सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। So this was the first lesson plan. I hope you all liked it. Please like and share and subscribe my channel.